सो वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। ये वो पॉडकास्ट है जो कि मोस्ट ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स डिमांडेड, बिकॉज हम उनके साथ हैं जिनको कौन नहीं जानता, ठीक है। एंड ही इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग गर्ल्स, ही इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग ब्यूटीफुल गर्ल्स जिनका एक्स हिस्ट्री तो इतना बड़ा है कि क्या ही कहें। एंड ऑल्सो तुम कोई भी कॉलेज लाइफ का कुछ भी उठा के देख लो, यहाँ पे उनका नाम मिल ही जाएगा, चाहे वो हो फेस ऑफ NIT रायपुर, कैट का रिजल्ट या फिर प्लेसमेंट। बंदे ने हर जगह पे फोड़ के रखा है। या फिर आप कह लो यदि स्पोर्ट्स, तो ही इज़ ए इंटरनेशनल पिकल बॉल प्लेयर। पिकल बॉल नाम आ गया तो आपको पता चली गया कौन है। सो टुडे वी आर विथ समर्थ सूर्या मिश्रा। एंड चलो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। थैंक यू। So hello everyone, this is Samarth Surya Mishra here, and thank you so much Rohit for this such a huge introduction. I totally don't deserve one, but again thank you so much and happy to be here. That's it. This is what he says when he wants to reject someone. I told you totally like maybe like a girl being like, hey Samarth, I love you. Arey you yaar, deserve better. I don't really, you deserve better. Toxic king. Maybe it's a career ending podcast for me, I don't know. But let's see. So before we start this podcast, I would like to tell you, like, if I was ever being toxic to you, मैं टेक्स्ट नहीं कर रहा था, ये कर रहे होते, बिकॉज बैक एंड पे यही संभालते हैं। बट ऑल्सो इज अ वेरी गुड डेटिंग गाइड बिकॉज ही हैव डेटेड top notch peoples, like क्या मतलब like I'm not justifying any, like मैं किसी को चिल कर भाई, चिल कर, थोड़ा लो की डाउन टू अर्थ रखना है ना। या सर लव्स टू, अरे मैं टॉक्सिक हो जाऊंगा मैं भी थोड़ा। हो जाओ भाई, हो जाओ। इसलिए टॉक्सिक हो जाओगा तो मे बी आई कैन गेट सम। No guys, toxicity is not the way. Of course be a gentleman. Yeah, be a gentleman. Yeah. Gentleman like Patrick Bateman. Nice. नहीं, So this is a podcast, but this is not a podcast actually. This is a shit talks, जहाँ पे हम हर चीज़ से बात करने वाले हैं। अच्छा, बाकी लोग आए तो पॉडकास्ट, ऐसा प्लेसमेंट जर्नी, मैं तो शिट टॉक। नहीं, the thing about this podcast is this, क्योंकि ये वो पॉडकास्ट जो सब देखना चाहते हैं। अच्छा, right? सब देख रहे हैं भाई कैसे, like try to keep you guys hooked. like just disclaimer दे देता हूँ, ये पॉडकास्ट मजाक में लेना, सीरियसली मत लेना, ठीक है। ये पॉडकास्ट सब काल्पनिक है, ये पॉडकास्ट भी नहीं है, इसलिए शिट टॉक से तो शिट टॉक को सीरियसली नहीं लिया जाता। सर, how you pulled so many beautiful girls in your college life? अरे यार I did, first of all I didn't pull anyone, to be honest, you know. Yeah, okay. And ऐसा कुछ नहीं है। The basic thing is, the basic philosophy is इसमें कि अगर आप कोई भी हो, मतलब even if you are a junior watching this, and it's just that you have to make friends in college and you have to bond with the peers of everybody, like, you know. So you should just be open, that's it. You should be frank enough to go and introduce yourself. Yeah, to be friends. Yeah, to be friend, yeah, just be with friend. benefits. With benefits that I don't know. But yeah, to be friends, that's it. And आप जाओ उनके पास and अच्छे से पूछो, that's it. You remember like पिछले साल का दिसंबर में, पिछले साल का, इस साल का 2022 में अपन यहाँ पे धूप आया था, अपन बैठे हुए थे, ठीक है। तो आपका क्लासेस खत्म हो गए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ शायद से 3rd या 4th सेमेस्टर की। तो वहाँ पे जूनियर्स आए हुए थे। अच्छा। When I was like, yeah, she is pretty, like I was just complimenting a girl. Sir said go talk to her. Yeah. I was like वैसे नहीं होगा। But sir said अभी बात कर ले, नहीं तो जब हम छुट्टी कटा के आएंगे तो तेरे को चांस नहीं मिलेगा। तो the theory behind this is कि 20 seconds of insane courage एक rule है, मैंने देखा था। अच्छा। So whenever you see anyone, and it can be an opportunity in any sense, like not a girl boy thing, it can be anything, whether it's somebody you want to talk to, whether it's somebody you admire, anything. So you just gather the courage for 20 seconds and just go and put yourself out there. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे या क्या होगा, लेकिन आपको जो एड्रेनलिन रश है वो जो आपको मिलेगा, that will be uncomparable. And best case scenario क्या है, you get a good friend or maybe you get a life partner, I don't know. One of the most surprising thing that happened in 2023 December was सर का कैट का रिजल्ट। जो कि लाइक मुझे पता था पहले, बिकॉज उसके पहले रिजल्ट से पहले अपन मिले थे कि बहुत अच्छा गया आपका। बट फिर जब वो निकला रिजल्ट एंड लाइक सबको लाइक पता चला, तो मेरे को आया भाई वो कैसे निकाल लिया, भाई वो कैसे कर लिया। लाइक 2 क्वेश्चन है। पहला कैट का प्रिपरेशन, कैट का एवरीथिंग, आप गाइड कैसे कैट निकालते एवरीथिंग, एंड सेकंड हाउ यू फ्रिकिंग मैनेज द टाइम
बिकॉज मेरे को पता है कहाँ का ट्रिप पे गए थे, ठीक है आप लोग, ठीक है बहुत सारे ट्रिप पे मुझे पता था ट्रिप पे फिर क्या क्या हुआ था वो भी बहुत कुछ पता था अरे भाई ठीक है, बट ये सब करके भी बंदा कैट निकाल लिया, प्लेसमेंट निकाल लिया, फिर इंटरनेशनल पिकल बॉल प्लेयर भी बन गया, और ऑल्सो ही अच्छा खेलता है, वो नहीं कि खराब खेलता है, अच्छा भी खेलता है। खराब कैसे खेलेगा? हाँ ठीक है ना, तो फिर भी होता है लाइक, ठीक है। तो कैसे करते हो ये टाइम मैनेज और ये कैट का बता दो। ये क्वेश्चन वैसे काफ़ी जूनियर्स ने भी पूछा था, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट इज गिव प्रायोरिटी टू द थिंग दैट नीड्स द मोस्ट एट दैट टाइम। सो मान लो आपकी प्लेसमेंट्स आ रही हैं अगले मंथ, सो गिव प्रायोरिटी टू प्लेसमेंट्स, बाकी सब चीज़ों को थोड़ा साइडलाइन कर दो। अगर आपका कुछ एग्जामिनेशन आ रहा है, कॉलेज एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, तो उसी चीज़ को प्रायोरिटी रखो 1-2 मंथ में, एंड बाकी चीज़ को साइडलाइन कर दो। एंड सिमिलरली अगर कोई पिकल बॉल टूर्नामेंट आ रहा है तो आई शुड प्ले पिकल बॉल फॉर 3-4 hours a day एंड जस्ट गियर अप फॉर इट एंड होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। बाकी अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना बहुत ज़रूरी है, आप बिलीव करो अपनी चीज़ों पे, एंड दैट्स इट यार, चिल करो, मज़े करो यार, मज़े करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया इमेजिनेशन वाली बात है। हाँ। आपने मतलब मेंटल वाला, हाँ। टाइम मैनेज कैसे करते हो? अगेन एज आई सेड कि आप जो चीज़ सामने आ रही है, हाँ। अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है हाँ। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, हाँ समझ रहे हो? हाँ जैसे आपका अभी एक पॉडकास्ट है, हाँ किसी मतलब कल को आप मे बी यू आर इंटरव्यूइंग द एमएलए ऑफ द सिटी, कि जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हो that like टच हो गया तो it's soon. So आप उसी पे फोकस करोगे एमएलए से क्या पूछना है, क्या बात करना है, राइट? यू विल नॉट फोकस ऑन अदर थिंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, राइट? एंड यही तो मैंने अप्लाई किया, एंड होपफुली रिजल्ट्स आर गुड. Talking about the CAT preparation which you asked, CAT is for MBA. CAT is an MBA entrance exam. तो अगर आपको BTech के बाद MBA करना है, Masters in Business Administration, so you can take coaching from AB classes. Yeah, I took coaching from AB classes. AB classes and the it's best like मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे बेस्ट. good. Yeah, we'll sponsor like इस वीडियो के बाद we'll go to them and sir please sponsor sir. आपका नाम यदि है. But sponsor yeah, मिल गया AB तो classes is good. Yeah, we'll talk about the sponsorship. चलो अभी चलते हैं. पक्का ना? Yeah, I'm serious. I'm dead serious. I'm also serious. ये इसको काटना मत. हम अभी चलेंगे AB क्लास पे and sir sponsor this video. चलो. Use code Rohit10. So AB क्लास एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कि वहाँ के सर हैं वो NIT रायपुर के पास आउट हैं. And yeah. He was the silver medalist of ECE branch in his time, and then he graduated and he went on to do an MBA from IIFT Delhi. बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है. It's under the Ministry of Commerce. So काफ़ी अच्छी बात है वो. So you can go there. CAT में 3 sections होते हैं. First is your verbal ability section. Second is your data interpretation, logical reasoning, and third is the quantitative ability. तो तीनों सेक्शन के मिला के 66 क्वेश्चन होते हैं. And you just need to manage, like if you just score 1/3 or like half of the like 198 का पूरा पेपर होता है. So you just need to score like 70-80 marks, then you will get a 99 percentile. 70-80 marks में like 198 Okay. होता है. So if you just score 80 marks, you will get a 99 percentile according to the past 2 years of CAT. So मेरे तो नहीं आया, like 99 percentile नहीं आया मेरे. I scored 97.26. But for the juniors watching this, you can surely aim at that thing and get into a good B school. I am Ahmedabad, I am Bangalore, I am Calcutta. वहाँ पे आप जिन लोगों से मिलोगे, जो peers होंगे आपके, वो next level होंगे यार. And फिर आपका जो growth होगा वो कोई रोक नहीं सकता. You will get job in the consulting firms, MBBs जो हम बोलते हैं, McKinsey, Bain and BCG, जो कि बहुत ही coveted roles होते हैं. वो किसी और के लिए open नहीं करते. मतलब बहुत ही कम ऐसा मैंने देखा है कि कोई नॉर्मल कॉलेज से गया है एंड नॉर्मल कॉलेज से MBA किया है एंड ही गोज इनटू फ्रंट एंड कंसल्टिंग. नहीं होता ऐसा. सो यू नीड टू गेट इनटू दिस टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्स. और इफ यू विश टू डू एन MBA, इफ यू आर हैप्पी विद इंजीनियरिंग एंड इफ यू वांट अ जॉब इन इंजीनियरिंग ओनली, या आपको कोई PSUs में जॉब करनी है, गिव द गेट एग्जामिनेशन, दैट वुड बी बेटर. बट कोई ना कोई एग्जाम देना चाहिए मुझे लगता है फाइनल ईयर में, ऐसे ही मजे में, दिक्कत नहीं है. यदि कोई बंदा कंफ्यूज है कि उसको कैट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप क्या कहना चाहोगे उसको? आप इतना देखो कि आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, लाइक मतलब आपको इंजीनियरिंग में नहीं, आर यू इंटरेस्टेड इन द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स? डू यू गेट इंस्पायर्ड व्हेन यू रीड अ स्टोरी लाइक ओके दिस स्टार्टअप हैज रेज्ड X amount of funding in Series A or Series B? Do you get inspired of the workings and the operations of a startup? Do you like finance? कि आपको नंबर से खेलना अच्छा लगता है? Do you like marketing? Do you read about Coca-Cola ने ऐसे मार्केटिंग किया था, पेप्सी ने कुछ ऐसा कर दिया था इसलिए उनका सेल्स बूम हो गया? आपको अगर ये सब चीज़ें पसंद है एंड ये इंटरेस्टिंग होता है मतलब, तो
यू कैन गो फॉर एन MBA, अच्छा होता है. सर तो प्लेसमेंट जर्नी बताओ. प्लेसमेंट जर्नी तो बहुत लोगों की सुनी है इसने जान ही लिया लोगों की, बट मैं अपनी बनाऊँ तो शॉर्ट में बताऊंगा बिकॉज यू नो. नहीं मतलब प्लेसमेंट जर्नी लाइक मैंने इनकी लोगों से सुनी है. स्टोरीज में याद है, स्टोरीज में लोग डाले थे, आप DM करे थे भाई नहीं शुभम सर को. यार तो अगेन सबसे पहली कंपनी आई थी फोन पे, एंड उसमें जो सिलेक्टेड है उनका इंटरव्यू तो हो चुका है. जो फोन पे में रिजेक्टेड थे हम लास्ट राउंड में, उनका इंटरव्यू ये हो रहा है. तो फोन पे का बहुत नाम था कॉलेज में. आपने इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे पता चल गया. हाँ? फोन पे वाला नहीं देखा आपने? हाँ, नहीं देखा. मैंने देखा है यार. नहीं, उसमें उसने बोला था हाँ. कि मतलब सर ने बोला था कि जो लास्ट राउंड पे रिजेक्ट हुए थे वो लोग अच्छी कंपनी से प्लेस थे. कोई ऐसे कंपनी से प्लेस नहीं है, क्योंकि लास्ट राउंड तक जो आ गए थे वो लोग सबके सब पैनल में अच्छे थे. बिल्कुल मानता हूँ, ये बात अच्छी है. एंड ये बात मैं एग्री करता हूँ जो प्रथम ने बोली थी तुम्हें कि लास्ट राउंड तक जो भी आया वो अच्छे कंपनी प्लेस तो हुआ है. बट वो लास्ट राउंड के बाद हटने का गम उसको नहीं पता है तो हम बताएंगे वो. सो अब प्लेसमेंट जर्नी ऐसी थी कि पहली कंपनी फ़ोन पे आ रही थी, तो एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ना था, तो पढ़ा, जो भी किया, एप्टीट्यूड निकल गया. उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का एक राउंड हुआ. आई थिंक दैट वाज द ओनली कंपनी दैट टुक ग्रुप डिस्कशन. शायद किसी और ने भी लिया था, बट शुरुआत में इट वाज द फर्स्ट कंपनी दैट वाज टेकिंग अ GD राउंड. तो GD राउंड में तो बोलना ग्रुप डिस्कशन में आपने था जिसे टेबल में मारा था? नहीं, मैंने नहीं मारा था. मैं तो बहुत ही मैं बहुत ही एनेबलर था. ग्रुप डिस्कशन में आया था ना, एनेबलर. क्या अच्छा तुम भी बोल लो, अरे तुमने नहीं बोला तुम बोल लो, अरे तुम भी बोल लो. तो उससे क्या लीडरशिप स्किल्स वगैरह दिख जाती है इफ यू एनेबल द पीपल. भले आप रियल लाइफ में ना हो, बट ग्रुप डिस्कशन में बनना पड़ता है थोड़ा सा. ओह रियली, अच्छा रोहित आप ऐसा बोल रहे हो, आई डोंट केयर व्हाट रोहित इज सेइंग, बट बट आपको चीज दिखानी पड़ेगी. यू नो लाइक अनुराग और मैं, अनुराग इज माय क्लोज फ्रेंड, दोनों के क्लोज फ्रेंड. हम तीनों अच्छे दोस्त हैं, मैं अनुराग और तुम. तो हम लोग ना मतलब ऐसे बातचीत करते, लाइक आई वाज चेकिंग किया समझ का क्या हुआ, लाइक उसका प्लेसमेंट लग जाता तो अच्छा होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लाइक होता है ना कोई लाइक जिनको तुम रिलेट कर सकते हो, लाइक तुम्हारे कॉलेज में होंगे जिनको तुम देख के सोचते भाई इसकी तरह थोड़ा सा मैं रिलेट, उसका कैरेक्टरिस्टिक मेरा कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है. तो मेरे को लगता है इनका वगैरह सेम है, मेरे को लगता है पर्सनली कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बट आई डोंट हैव द subs in YouTube that he has. So I don't have the cat. अरे shut up bro, I don't have that let's not go talk about his partner. Neither do I have a very gorgeous ex list. Okay, let's get to the topic. Shut up. Okay, shut up. नहीं, I have iPhone 15. Okay, 15 plus. DSLR कैमरा यार बाजू में. चलो अरे वो भाई वो उसका 3 गुना प्राइस वाला है. These are all the materialistic things. अब जो पर्सनालिटी बात करने में मुझे मजा आ रहा है वही मजा है, आपको देखने में मजा आ रहा है. अगर आप देख रहे हो यहाँ तक तो वो मजा आप तो कोई चीज थोड़ी लगता है. You should be grateful. Okay, how I pulled this. कैंसिल कर रहा था पॉडकास्ट ये आज. अरे हाँ, मैं बोला कि यार बहुत थक गया हूँ, कल करते हैं. बट मैंने बोला कुडोस टू दिस गाय यार, कुडोस टू दिस गाय, इसने ऐसा किया. कन्विंसिंग पावर है मेरे पास. मैंने बोला पॉडकास्ट इज नथिंग, जस्ट रैंडम बात कर रहे हैं. तो मेरा हाँ बात तो कर रहे हैं, तो ऐसी बात कर लेता हूँ मैं रात को 12 बजे न्यू ईयर पे फोन आता है. तब तो बात कर ही लेता हूँ मैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता. बट अगेन तो प्लेसमेंट जर्नी वापस आए तो इट स्टार्ट विद द फोन पे, एंड उसमें मेरा नहीं हुआ था. सो लास्ट राउंड में नहीं हुआ, बुरा लगा यार, क्योंकि सुबह आप जाते हो 8 बजे, रिक्रूटर्स आते हैं 9 साढ़े 9 बजे. धीरे धीरे इंटरव्यू होता है. मैं बता रहा था ना यार अनुराग, तो हमने बोला कि फोन पे लग गया लास्ट कि लास्ट राउंड तक जा रहा है ये, समझ लास्ट में पहुंच गया. मैंने बोला बहुत सही है, लग गई तो मस्त है भाई, ही डिजर्व. लाइक भाई क्या उखाड़ा है लाइफ में, जिंदगी में इसने, ठीक है. तो ऐसा था. फिर उसने बोला भाई, फिर हम लोग को था कि ये तो डोमिनेट कर जाएगा इंटरव्यू में, लेजिटली लाइक तुम्हें इफ यू डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, पर्सन है, ठीक है, डोमिनेट कर जाते हैं. ठीक है. तो उसने फिर अनुराग बोला अबे नहीं हुआ. फिर मैंने बोला कैसे नहीं हुआ भाई, वो तो पूरा डोमिनेट कर जाना चाहिए उसको, जब निकाल ले सब कुछ. तो फिर हम लोग को पता चला पेरी प्रथम थे सर सामने में. देखो पेरी प्रथम सर इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप नॉच गाइस, जो उनका भी पर्सनैलिटी नॉमिनेटिंग वाला है, उनका एक्सट्रीम नॉमिनेटिंग, इनका भी है. बस अच्छा मेरे को समझा, अच्छा वो टफ कॉम्पिटिशन था. एक्चुअली कंपटीशन की बात नहीं होती है, ऐसे बताता हूँ. अगर अब कोई वहाँ तक जा रहा है तो 700 बच्चों ने एग्जाम भरा है ना, so it's not about competition thing. Yeah, it's just about थोड़ा सा luck, and you know it could be anything यार. मतलब you get certain advantage being a TNP coordinator as well. So I don't know. This podcast is controversial. I'm not saying anything, but ऐसा है कि नहीं, he definitely worked hard for it. But ऐसा है कि it's not a competition. भी बता रहा हूँ, it's not you versus him. It's just random. यार आपका नहीं हुआ, हो गया. एंड हर प्लेसमेंट ऐसी होती है. आपको क्या लग रहा है कि आपके इंटरव्यू जो आके देता है वो बहुत ज्यादा टॉप है? लाइक आई नो गाइस हु आर फ्रॉम टॉप ब्रांचेस,
who scored a 99 like 98 percentile in JEE mains and उनकी प्लेसमेंट नहीं हुई अभी तक. तो क्या उस बंदे में कोई कमी है? ऐसा नहीं है यार, उसका लक साथ नहीं दे रहा, होगी अच्छी जगह. And I think if you're sitting in the head of the NIT campus, if you're an NITian, you'll be grateful of that fact. And आपने कुछ करके ही आया NIT रायपुर में, मुझे लगता है कोई ऐसी आ गया है. Because it's a coveted campus, you can't buy a seat of an NIT रायपुर. हम ऐसे ही बोलते रहते कि if you are going into some private college doing a CSE, उस पर डिफरेंस क्या होता है? कई लोग बोलते हैं हमें करना नहीं. You cannot buy a seat of NIT रायपुर, even if you have all the money in the world. It's a statement that किया है आपने कुछ. तो इट्स जस्ट अबाउट दैट. एंड लक का भी होता है थोड़ा सा, नहीं दिया उसका, बट उसके अगले कंपनी में दे दिया तो बहुत जल्दी प्लेसमेंट हो गई. तो आपके घर में क्या डोमिनेटिंग कौन है? डोमिनेटिंग ऐसा कोई नहीं है, सब बहुत लिबर्टी देते हैं, सब बहुत फ्रीडम देते हैं कि जो करना है करो. वी आर देयर टू बैक यू अप. एंड आई डोंट थिंक कभी किसी चीज़ के लिए मना किया होगा उन्होंने. छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, क्रिटिकल डिसीजंस में काफ़ी हेल्प किया है. तो घर का माहौल ऐसा है, इसलिए मैं आज जो भी कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट ओनली. घर का यंग चाइल्ड ही मेरे हिसाब से वो होता है जो ना मतलब अलग ही मतलब कुछ कर रहा होता है. लाइक मतलब आप तो सभी को हो रहा है, बट मेरे घर में ऐसा है कि मैं इकलौता जो कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है. लाइक सब कोई लाइक समझ रहे हो, नॉर्मल ये होता है. देखो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये होता है नॉर्मल लाइन. आप आए कॉलेज, प्लेसमेंट ली, इंटर्नशिप किया, नहीं लगी तो गुड है, नहीं तो लगी तो और गुड है, फिर प्लेसमेंट, फिर जॉब, फिर फैमिली, ऐसे. पर कोई ऐसे भी होते कि कॉलेज में आया, अपना पैशन ढूंढा, फिर उसमें काम किया, फिर ऐसे ऐसे करके अलग ही रास्ता. मेरे हिसाब से मैं अलग रास्ते में जा रहा हूँ. अलग रास्ता लेना बहुत अच्छा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गुड थिंग. लेकिन हमेशा अपने में लाइक इतना कैपेबिलिटी है कुछ, लाइक इतना तो होना ही चाहिए कि हम नॉर्मल रास्ता भी आराम से फॉलो कर ले. लाइक इट शुड बी अ केक वॉक फॉर यू. क्योंकि तुम अलग रास्ता ले रहे हो तो गेटिंग अ प्लेसमेंट इज अ नो ब्रेनर फॉर यू, राइट? ले लो, क्या पता बाद में काम आ जाए. बैकअप प्लान. बैकअप प्लान लाइक बट लेट्स हैव अ डिबेट. प्लेसमेंट के बाद भी यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन कॉलेज वेयर यू कैन डू समथिंग सिग्निफिकेंट. But again, the best time to, if you want to start something and follow a passion, best time to do that is in first and second year. First year में आप नए आए होते हो तो चलो you can enjoy college life for 1 year. But second year से you can just follow your passion. 1 year you have one and a half years. Because placement की तैयारी तो आप third year के ending में या fourth year के starting में करोगे. उसके बीच का जो टाइम है, academic load होता है थोड़ा सा, मानता हूँ, but NIT में उतना भी नहीं होता है. आप बाकी कॉलेज में जाओगे या मेडिकल कॉलेज में जाओगे, अभी आपके कोई दोस्त होंगे, तो वहाँ पे जो academic load है वो it's like far greater than what we have here in NIT Raipur. Like people really need to study sleepless nights to clear their examinations. So you're getting the liberty that you're not going, like I don't think anybody does that in engineering. Maybe somebody who has a 9.5 GPA he does that. But तो हमारे जो सर है वो बिलोंग करते हैं यांत्रिकी अभियांत्रिकी ब्रांच से. ठीक है. I don't know what that means. सर ने बोला तो बोलेगा तो बोल दिया. So basically that means mechanical engineering. Mechanical engineering, the old like. तो बताओ mechanical engineering में क्या होता है? Mechanical engineering tough है यार. Mechanical engineering थोड़ा tough है compared to बाकी branches. Electrical and mechanical are on the higher side. Electrical से रोहित है. Well, like I'm just surviving the semesters. But to be very honest, जो professors हैं यहाँ पे, like एकदम OG professors हैं, वो आएंगे क्लास में, they will speak anything they want. Like जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना वहाँ दिखती है क्लास में. दे स्पीक एनीथिंग दे वांट. ऐसा मतलब एक हमारे सर उनकी क्लास होती है एंड ही स्पीक्स हिज माइंड एंड द होल क्लास लव्स इट. मतलब क्या बोला है सर ने, एंड किसी से डर नहीं है उनको. लाइक बहुत ही गैंगस्टर टाइप प्रोफेसर है यार, ओजी मतलब, यू नो. तो काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ. एंड पढ़ाते भी अच्छा है. मतलब मैं तो पढ़ता नहीं था बट पढ़ाते अच्छा है. एंड ख्याल रख लेते हैं, अगर आपका कुछ इधर उधर हो रहा है तो थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं, रहता है. ओके, मुझे नहीं पता ये सब, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे नहीं पता. जैसे कि बोलते हैं और सामने वाला ऑर्डर जाता है. पॉडकास्ट तुम्हारी, चैनल तुम्हारा, मैं नहीं इन्वॉल्व. तो मैं सच बता रहा हूँ, सर का 2 दिन में फ्लाइट है, अभी निकल जाएंगे, फिर मेरे को इधर कॉलेज में रहना है. ठीक है, मेरे को कॉलेज में रहना है. मेरे को वेरी बोला कुछ सर, मैं रिस्पेक्ट. मैं तो अच्छा ही बोल रहा हूँ, अच्छे प्रोफेसर है. मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ. हाँ, बहुत अच्छे प्रोफेसर है, मैं वही कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ. मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर बिगिनर्स. सी आई थिंक आई एम अ बिगिनर एंड मुझे पता नहीं मैंने क्यों ये ब्रांच ले लिया जिसमें मैं हूँ. बिकॉज समवेयर लाइक एक्चुअली आई शुड गो अहेड एंड से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आर नॉट फॉर बिगिनर्स, ऐसा बोलूंगा मैं. लाइक कुछ दूसरा ब्रांच लेता है ना तो कुछ होता है, कुछ प्रो करना पड़ता है कुछ. एंड मैकेनिकल के जो एलुमनाई थे उन लोग ने भी काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया ब्रांच को. एंड कोई भी सेक्टर में, आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज में देख लीजिए, वहाँ पे हमारे एलुमनाइज है. आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में हमारे एलुमनाई हैं. तो दे हैव डन गुड थिंग्स इन लाइफ, मैकेनिकल के एलुमनाई. तो सर आप जा रहे हो राइट? 2 दिन में अब जा रहा हूँ मैं. तो कुछ बोली तुझे आपको बोलना है किसी क्लब और कम्युनिटी के बारे में?
मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, बस क्लब कमेटी के बारे में ये सर का पर्सनल डिमांड था कि वैदी पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अरे बात कर, जूनियर्स को पता होना चाहिए कि कौन से क्लब आप रियल एप्ले कौन से सही में काम करते हैं। ऐसा पता होना चाहिए ना जूनियर्स को। ओके, तो देखो ये सर का डिमांड था कि मैं पॉडकास्ट करूंगा तो तुझे रिटर्न एग्रीमेंट सर ने साइन करा, तो ये सर आप बोल सकते हो सर। तो क्लब एंड कमेटी अगर आप जूनियर है फर्स्ट ईयर में तो आप सब ज्वाइन कर लीजिए बिना सोचे। एंड जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आप सेलेक्टिव बनिए अपने अप्रोच में एंड वही क्लब ज्वाइन करिए जिससे आपको करियर में फ़ायदा है, आपके रेज्यूमे में अच्छा बिल्ड होगा या आपको सीखने मिलेगा। सो फ्यू ऑफ द क्लब दैट आई रिकमेंड ज्वाइनिंग आर फाइनेंस एंड कंसल्टिंग क्लब ऑफ कोर्स, एंड इफ यू आर इनटू आर्टिस्टिक साइड यू कैन ज्वाइन अभिनव ड्रामेटिक्स क्लब और नृत्यम। लेकिन नृत्यम का मैं पीआई 4 बार दिया था, मैं 4 बार रिजेक्ट हो गया था। मैंने हर साल अप्लाई किया था। कौन से डोमेन में? मैं डांस में गया था पहले बार, तो किसी ने मेरा डांस देखा, मृदुल सर थे, मृदुल शर्मा सर। मैंने मुझे व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप में गया, अच्छा लगा मुझे कि लाइक ठीक है योर आंसर्स वाज गुड बट डांस में थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, तो अगले साल फिर अप्लाई करना। तो मैं अगले साल मैनेजमेंट में दिया, मैनेजमेंट में मेरा नहीं हुआ, फिर मैं 4th ईयर में फॉर्म भर दिया था जस्ट टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन कि यार नहीं हो रहा तो कुछ अच्छा हुआ था। सो नृत्यम से वो था। 4th ईयर में लोग आते हैं क्योंकि हमारा ईयर एंड पार्टी बहुत मजेदार होता है। ईयर एंड एक्चुअली मैं भी इसीलिए ज्वाइन करा था। तुम्हें क्या लगता है 4 बार फॉर्म मैंने किसी और के लिए भरे हैं, उसीलिए ज्वाइन किया मैंने भी। ईयर एंड पार्टी जो होती है ना नृत्यम की, वो माशाल्लाह क्या पार्टी होती है, तो उसीलिए तो ज्वाइन करना चाह रहा था मैं। 4 बार अप्लाई किया था, 4 बार रिजेक्ट। तो आपने बोला कि ये सब क्लब ज्वाइन करो, राइट? कुछ क्लब्स जो कि आप सजेस्ट करके नहीं ज्वाइन करना, या फिर लाइक समथिंग वैसे क्लब ज्वाइन मत करो जो नाम में कुछ लेके और काम कुछ और कराएं। जैसे कि कुछ दैट वाज डीप। जैसे ओ भाई, हाँ समझ रहे हो ना? हाँ, अगर सपोज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, ठीक है, यू आर लिविंग कॉलेज, ये आपके लास्ट के 2 दिन है कॉलेज में यार। सही बात है। योर थॉट्स क्या लग रहा है? व्हाट यू फीलिंग लाइक? व्हाट आई एम फीलिंग लाइक, एक इंग्लिश में पोएम थी द रोड नॉट टेकन। पढ़ी है? हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। हाँ, मैं उसी रोड पे हूँ, द रोड नॉट टेकन। अच्छा, तुम ही उसमें। तो उसमें एक पाथ में रहता है ना, तो आई फाउंड सम साय, एक 2 पाथ है, क्या लेना चाहिए मुझे, द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। उस टाइप का थोड़ा सा लग रहा है यार, मतलब क्या बताऊँ। जाना है अभी इंटर्नशिप पे, इट्स अ बिग कंपनी ऑफ कोर्स, आई एम फर्स्ट ऑफ फॉर्चुनेट कि आई गॉट दिस इंटर्नशिप, बट थोड़ा सा वो भी है, इट्स एंड ऑफ अ गुड चैप्टर, प्रॉब्ली द बेस्ट चैप्टर। स्कूल में इतनी लिबर्टी होती नहीं है, कॉलेज में आपको इतनी लिबर्टी मिलती है, थोड़े पैसे मिलते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, यू नो, एक फ्रीडम सी मिलती है, इंडिविजुअल आपकी एक इंडिविजुअलिटी है कॉलेज में। स्कूल में और जस्ट इन अ बंच ऑफ किड कि आप चलो ठीक है ये भी पढ़ रहा है इस सेक्शन में। कॉलेज में आपको लोग जानते हैं कि यार हाँ यार ये रोहित है, ये यूट्यूबर है, या जो भी, यू नो, दे नो यू फॉर थिंग्स दैट यू डू। सो टू लिव अ गुड कॉलेज लाइफ जस्ट गो विद द फ्लो एंड मजे करना बहुत ज़रूरी है। सो या रात हो गई है एंड गार्ड भैया भी आ चुके हैं, बोलते हुए कि लाइक लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट बिकॉज दैट वाज टू मच। आप यदि ट्रेन लेट नहीं होता ना, या और तुमको 1 घंटा ज़्यादा मिलता, बट आई होप सो यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। चलो सब्सक्राइब करो पहली बात, ठीक है? सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इट इज you guys please subscribe to this guy, he's working really hard for you guys। 79% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है? मेरा पता है YouTube चैनल में 50K व्यू क्रॉस कर चुका है, बट अभी तक 900 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हुए हैं, ठीक है? सब्सक्राइब तो करना, थोड़ा सा बटन हल्का थोड़ा दबा दो यार, ठीक है? ये हो गया सब्सक्राइब वाला। एंड ऑल्सो यदि इसमें देखो मेरा हाईएस्ट अभी 305 लाइक्स, बट यदि इसमें 300 क्रॉस कर रही है लाइक्स में ना, 300 दैट इज अ वेरी बिग नंबर आई एम गिविंग। तो इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में अपन बात करने वाले हैं हाउ टू लिव अ सक्सेसफुल कॉलेज लाइफ, हाउ टू बी डू एवरीथिंग एंड स्टिल मैनेज टाइम, बिकॉज इस बंदे ने सब कुछ करके बैठा है। अरे यार ठीक है, चलो साइनिंग ऑफ, रोहित दास।